Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our lesson number 21. In the previous lesson, we have studied some algebraic identity. Algebraic identity number one was this: a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. In the previous lesson, we have written this identity in the way a square plus 2ab plus b square, but this can also be written in this form: a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, and a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. If you look at these three identities, in each identity there are three terms involved. In the first identity, there is a plus b whole square, there is a square plus b square, and there is ab or 2ab. There may be only ab. In the second identity, there is a minus b whole square, a square plus b square, and 2ab or ab. And in the third identity, there are three terms: a minus b, a plus b, and a square minus b square. Now these identities are also used to solve some questions when the value of any two of these quantities are given, and you are asked to find the value of the third quantity. That is, if you are given the value of a plus b whole square, or simply the value of a plus b and a square plus b square, and you are asked to find the value of ab, or if you are given the value of ab and a plus b whole square, or simply a plus b, and you are asked to find the value of a square plus b square. And similarly, uh, in these two cases, so when two of the three quantities are given and you are asked to find the third one, so you have to identify which identity is to be used to find the value of the unknown quantity. So let's see some questions in which we will use these identities to find the missing term. There may be any letter instead of a, b. There may be x, y. X plus y is equal to x square plus y square plus 2ab. And similarly, in these identities, there may be x and y also. So this is exercise 4b, and that's question number 5. In this question, it is given that the value of x square plus y square is equal to 80 and the value of xy is equal to 12. Find the value of x minus y whole square. इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है x minus y whole square की. तो इसका मतलब है कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकंड वाली, जिसमें x minus y whole square है. तो इसकी आइडेंटिटी को लिख ले: x माइनस वाई होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy. अब देखिए, इसलिए हमने स्केयर वाली टर्म्स को इकट्ठा किया है, क्योंकि जब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई होगी, तो इस पूरी टर्म को हमने इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना. अब देखिए, x माइनस वाई होल स्केयर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आपको दी हुई है, और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है. तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. x square plus y square is 80 minus 2 and the value of xy is 12. Simplify this, we will get 56. So the value of x minus y whole square is equal to 56. If you are asked to find the value of x minus y, simply x minus y, so you will take the square root of both the sides, then you will get x minus y is equal to square root of 56. But now in this question, you are asked to find the value of x minus y whole square. Similarly, in question number 3, you are given the value of x plus y, which is equal to 10. The value of x minus y is equal to minus 4, and you are asked to find the value of x square minus y square. So there are three quantities: x plus y, x minus y, and x square minus y square. The values of x plus y and x minus y are given, and you are asked to find the value of x square minus y square. So which identity we will use? The third one. So x minus y, instead of a, b, we have used x and y, because in the question the two quantities are x and y.
x minus y into x plus y is equal to x square minus y square. The value of x plus y and value of x minus y are given. Value of x minus y is minus 4 and value of x plus y is 10. And the value of x square minus y square is to be determined. So multiply these two to get the value of x square minus y square, which is equal to minus 40. Now this is question number 11. If x square plus y square is 14 and xy is equal to 5, then find the value of 1 over x plus 1 over y whole square. देखिए ये x plus y whole square की बजाय अब इसके साथ जो a है फर्स्ट टर्म है that is 1 over 4 x and the second term is 1 over first term is 1 over 2x and second term is 1 over 2y. तो अब इसको हम expand करेंगे by using this identity, first identity. So this will be equal to 1 over 2 x plus 1 over 2 y whole square is equal to the square of the first term plus square of the second term and plus double product of the two terms. देखिए इसमें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम एक्सपैंड सिंप्लीफाई करेंगे 1 over 2 x का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 1 over 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इधर से भी 1 over 4 आना है, इधर से भी 1 over 4 आना है और 1 over 4 दोनों में से कॉमन आके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा. या आप एक स्टेप यहाँ पे और कर लें 1 over 4 x स्क्वायर प्लस 1 over 4 y स्क्वायर और प्लस 1 over 2 xy और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप 1 over 4 को कॉमन निकाल लें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 over 2 xy आ गया. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें. आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू है, आपके पास xy की वैल्यू भी उसने दी हुई है, तो इसमें x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू और xy की वैल्यू पुट कर दें. 1 over 4 14 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू है प्लस 1 over 2 xy की वैल्यू 5 है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वी विल गेट 14 डिवाइडेड बाय 4 इज 3.5 and 1 over 2 multiplied by 5 और 5 divided by 2 is 2.5. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो we will get 6 answer. So this is the way of doing these type of questions. In question number 12, it is given that 2x square minus 2y square is equal to 125. X minus y is 2.5 and you are asked to find the value of x plus y. तो अब इसमें देखें ये x माइनस वाई है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई और x प्लस वाई थर्ड आइडेंटिटी में यूज होता है. तो ये जो गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन आ गया और फिर आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया. इसको फर्दर फैक्टराइज कर लें. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ये वाली एक्सपेंशन जो है इस फॉर्मूला से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होती है. अब इसमें वैल्यू पुट करें. इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर की वैल्यू 125 है. 2 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2.5 है और x प्लस वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 5 x प्लस वाई. अब इस 5 को इधर ला के डिवाइड कर दें. 125 over 5 is equal to x plus y and x plus y is equal to 25. तो x plus y की वैल्यू जो है वो 25 आ जाएगी. So this is your question number 12. Now question number 10, it's B part. It is expansion, expand and simplify. ये है आपके पास. अब देखिए पहली टर्म में 2 ब्रैकेट्स हैं and in these 2 brackets first term of the 2 brackets same, second term same, between them there is different signs and this is a minus b whole square. तो इस को फर्स्ट टर्म को एक्सपैंड करेंगे थर्ड आइडेंटिटी से और सेकंड टर्म को एक्सपैंड करेंगे सेकंड आइडेंटिटी से. सो दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 2 ये वाला और x माइनस 2y होल स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें. इसका स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर
-2 और इस ब्रैकेट के अंदर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर -2x2y और +2y स्क्वायर, वही लिखा गया, दोबारा रिपीट हो गया स्टेप, ये आएगा एक्चुअली 2x² -4xy +4y स्क्वायर। अब ये वाली ब्रैकेट हमने रिमूव करनी है। -2 को इस सारी ब्रैकेट से, सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 25x² -49y² -2x² +8xy -8y²। अब इसमें लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे। 25x² -2x² is 23x² -49y² -8y² is 57y² एंड 8xy प्लस का जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो इसकी एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन जो है वो ये आ गई। Solve its A part by yourself. Now come to question number 13. In question number 13, this is the question. There are three brackets. We have to remove all the three brackets. Expansion mean, expand mean, आपने ये brackets को remove करना है। तो पहले हम ये वाली दो ब्रैकेट जो हैं इसको रिमूव करेंगे। अब देखें ये दो ब्रैकेट्स, इसमें पहली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है और बीच में डिफरेंट साइंस हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/4x² -1/5y², ये वैसे ही आ जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू 1/16x² एंड 1/5y² मीन 1/25y²। अब ये a प्लस b और a माइनस b, फिर ये दो ब्रैकेट्स हैं और इनकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो सेम है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर लेंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे और बीच में माइनस साइन जो है वो डालेंगे। तो 1/16 का स्क्वायर जो है वो 16 का स्क्वायर 256, x² का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 1/256 y की पावर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। In question number 14, first part, you are asked to expand and simplify. ये आपके पास एक्सप्रेशन है p - 2q होल स्क्वायर माइनस p इंटू p - 4q। तो सिंपली इसको हम सेकंड आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर लेंगे और ये वैसे ही ब्रैकेट रिमूव करेंगे कि p को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन भी चेंज कर देंगे। तो दिस इज p स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, देन माइनस p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये p स्क्वायर और -4pq आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास p स्क्वायर -4pq 4q स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, -4pq और +4pq ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ ये रह गया 4q स्क्वायर। यानी इसको जब आपने एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर 4q स्क्वायर आता है, 4q स्क्वायर। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि हैंस, हैंस जब भी वर्ड आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपने फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है उसको यूज करके पार्ट 2 का आंसर जो है वो देना है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ सुटेबल वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। ये 5310 का स्क्वायर माइनस 5330 मल्टीप्लाइड बाय 5219, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये एक नंबर का स्क्वायर है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले किए हुए हैं। तो हम सपोज करते हैं कि p की वैल्यू जो है वो 5330 और q की वैल्यू जो है वो 10 है। तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 5310 स्क्वायर माइनस 5330 मल्टीप्लाई 5219। ये जो है वो आपका, ये जो पार्ट 1 था उसकी तरह की ही ये चीज बन गई। ठीक है, ये इसको हम p - 2q की फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली जो टर्म है, और ये जो है वो p और p - q की फॉर्म में लिखेंगे। देखें ये हो गया p - 2q का स्क्वायर, ये वाली टर्म बन गई p - 2q। ये जो वैल्यूज हैं वो हमने यूज की। p की वैल्यू हमने ली थी 5330
माइनस इसमें 2q, q जी ली थी 10। अब देखिए इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास यही आएगा 5310। 10 2s आर 20, 20 इसमें से माइनस करेंगे 5310 का स्क्वायर ही आएगा, ये आ गया माइनस 5330 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो है 5290 को हमने ये विद इन ब्रैकेट लिख दिया 5330 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5290 आ जाएगा। तो इस ये मल्टीप्लाइड बाई ये, अब देखिए ये वाली जो टर्म है पार्ट 1 में, इसको जब हमने एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया था 4q²। इस आंसर को यूज करना है हमने। तो इसका आंसर ये वाला जो नंबर है सारा, इसका आंसर भी 4q² आना है। q हमने कौन सी वैल्यू ली है 10, 4 को 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा, अगर आप इसको वैसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो। सो दिस इज इक्वल टू 4 10 टू रेज पावर 2 या 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमने यूज किया, पहले हमने इसको इसकी फॉर्म में लिखा और इसके रिजल्ट को यूज करके हमने यहां से q की वैल्यू ली। यहां से q की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर लेके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। तो ये n² माइनस ये दो ब्रैकेट्स हैं, पहली टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, बीच में प्लस और माइनस साइन है। तो n² तो वैसे ही आ जाएगा माइनस ये n² माइनस a², ये थर्ड वाली आइडेंटिटी को जब यूज किया, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज n² माइनस n² प्लस a², तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर क्या आ गया a² आ गया, सिंपल। तो इस ये वाला जो है n² माइनस n माइनस a इंटू n प्लस a किसके इक्वल आ रहा है सिंप्लीफाई होके a² के। उसी तरह हमें उसने कहा हैंस, वेन एवर देर इज अ वर्ड हैंस, इट मीन्स कि आपने पार्ट 1 के आंसर को ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप कोई और मेथड जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर हो हैंस और अदरवाइज तो फिर आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो, बट व्हेन देयर इज ओनली हैंस इट मीन्स यू हैव टू यूज दिस। सो इस क्वेश्चन को पहले आप इस फॉर्म में लिख लें, इसका आंसर a है तो उसमें a की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। ये इसको हम दोबारा लिखते हैं, n की वैल्यू हमने ली 16947 n² और a की वैल्यू ली 3। देखिए n इधर 44 है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसमें 3 प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सो दिस इज 16947² माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये जो है वो n के इक्वल आ गया n²। ये आपके पास n माइनस a है, n माइनस a यानी ये n और ये माइनस a, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और ये जो है वो n प्लस a है। ये किसके इक्वल आता है a के इक्वल है, यानी ये इसका आंसर जो है वो इसके आंसर के इक्वल ही आना है, और इसका आंसर क्या है पार्ट 1 में a²। तो यहाँ पे इसका आंसर जब सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो a का स्क्वायर होगा, यानी जो वैल्यू हमने यहाँ पे a की ली है उसका स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर, और इसका आंसर जो है वो 9 आ गया। So this is your exercise 4B. This is my profile and my YouTube channel is the mathematics teacher Zahid Hussain. You are requested to subscribe this channel please, and click the like button also if you like these lessons. Mathematics is the name of practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.